Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGOI. In the last class, we have started exercise 5B, and I think I have told you one or two questions of question number 1. From question number 2 to question number 7, I just want you to get through these questions by yourself, and I would be providing the solution of these questions in the PDF as well. ठीक है? And I want you कि आप आंसर्स सीट से उसको देख करके समझने की कोशिश करो अपने आप से, ठीक है? And if you won't be able to understand, then I would be providing you the PDF, and along with it, you can also ask me your queries in the further query sessions, okay, which I will be taking. So let's start from question number 8, because question number 8 and further questions, that means from 8 to 12, the questions require more attention and they are much more of your use as well, okay. So in question number 8, it is saying let A be the set of letters in the word seed. Find A. You are given with the word seed, and it is saying you have to prepare a set by the use of the alphabets or by the use of the letters in this word, और उस set का नाम आपको देना है set A, okay. So you will be saying set A is equal to क्या हो जाएगा, all the alphabets of the word seed, first alphabet, second alphabet and D. Or you could also, it is saying all the alphabets, that means एक और E आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. तो the set A will be S, E, E and D, okay. Set A will be equal to S, E, E and D, ठीक है. लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि कभी भी जब सेट बनाते हो आप, तो ऑल द अल्फाबेट्स की बात की जाए तो ई दो बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि दिस इज नॉट राइट, है ना. मैंने जानबूझ के इसको ऐसे लिखा. आपको क्या लिखना पड़ेगा इसमें लिखना पड़ेगा S, then E and then D. Why? Because in a set, जब सारे इसमें बोला जा रहा है कि सारे अल्फाबेट्स का यूज करना है, तो सारे अल्फाबेट्स में E दो बार आ रहा है, तो हमें एक बार यूज करना है उसको. S और D भी ऐसे ही यूज करना है, ठीक है. Now in the second part, it was the first part. In the second part, it is saying what is the value of NA. NA का मतलब क्या होता है? NA means you have to find the cardinal number of this set A. तो NA किसके इक्वल होगा? NA will be equal to, count the elements 1, 2 and 3. तो NA will be equal to 3, ठीक है. Now moving to its third question. It is saying number of subsets of A. Number of subsets of A, ठीक है. आप जानते हो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 2 to the power n, where n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, which is equal to 1, 2 and 3. तो आंसर will be 2 की पावर 3, which will be giving you the answer 2 into 2 into 2, that means 8, ठीक है. तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A कितना हो जाएगा? 8, ओके. देन इट इज सेइंग नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A. मैंने आपको बताया कि प्रॉपर सबसेट्स कैसे निकालते हैं. प्रॉपर सबसेट, you know that the formula for calculating the number of proper subset is 2 to the power n minus 1. So answer will be 2 to the power n minus 1, that is 2 to the power 3 minus 1. So it will be 2 into 2 into 2 minus 1, that means answer will be 8 minus 1, which is equal to 7, ठीक है. या डायरेक्टली आप बोल सकते थे अगर नंबर ऑफ सबसेट्स 8 है तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? उससे एक कम. क्यों? क्योंकि ओरिजिनल वाला जो सेट है वो प्रॉपर सबसेट में यूज नहीं होता है, ठीक है. सो आई होप यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन नंबर 8. Now let's move further to question number 9. Question number 9. Question number 9, it is being told find all possible subsets of each of the following sets. कुछ सेट्स दिए गए हैं आपको और आपको बोला जा रहा है कि सारे पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स आपको फाइंड करने हैं. फॉर एग्जांपल पहला पार्ट में इट इज गिवन A is equal to 4, 9. एक सेट है A, उसमें जो एलिमेंट्स हैं
दे आर 4,9। आप जानते हो कि इस सेट ए के कितने सबसेट्स बनेंगे, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 1 2, तो मतलब इसके टोटल 4 सबसेट्स बनेंगे। पहला सबसेट हमेशा क्या होता है, 5 होता है। पहला सबसेट क्या होता है हमेशा 5। दूसरा सबसेट क्या होगा, एक एलिमेंट इसका ले लिया 4। तीसरा सबसेट क्या होगा, एक एलिमेंट ले लिया 9। और चौथा सबसेट क्या होगा, दोनों एलिमेंट्स ले लिए 4,9। ठीक है। somebody can also tell कि 4,9 एक सेट है तो दूसरा सेट 9,4 भी तो हो सकता है। नहीं, सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना, ऑर्डर डज नॉट मैटर। 4,9 और 9,4 क्या है, एक ही सेट को बिलोंग करते हैं। तो इस वाले पार्ट के कितने सेट्स हो सकते हैं टोटल, 4। कौन कौन से, 5 4 9 and then 4,9। okay, now let's move further to second part. It is saying b is equal to, and it is given with the elements 2 3 and 8, 2 3 and 8। ठीक है। अब आप जानते हो कि इसमें क्या बताना है आपको, सारे नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने सबसेट्स हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं, ठीक है, कितने हो सकते हैं, 2 to the power n। यहाँ n का वैल्यू कितना है, 1 2 and 3। इट विल बी 2 की पावर 3 which will give you answer 8। ठीक है। इसका मतलब इसके टोटल कितने सबसेट्स हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ 8 सबसेट्स हो सकते हैं। कौन कौन से, पहला तो हमेशा 5 होता है, नेक्स्ट विल बी 2, देन इट विल बी 3, देन इट विल बी 8। ठीक है। उसके बाद इट कैन बी 2,3, देन इट कैन बी 2,8 एंड देन इट कुड बी 3,8। ठीक है। एंड 1 कुड बी, सो काउंट कर लेते, 2,8 एक से आया, देन 2,3 एक से आया एंड देन 3,8 आया। एक और बच रहा है, दैट विल बी द सेट इटसेल्फ। क्या हो जाएगा, 2,3,8। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, सो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम अ गिवन सेट। पार्ट नंबर 3 आई वांट यू टू सॉल्व दैट बाय योरसेल्फ because I think I have already made you understand the concept of subsets. Okay, now let's move further. Question number 10. In question number 10 it is saying find the power set of each of the following sets. ठीक है, बोल रहा है कि आपको पावर सेट फाइंड करना है। फाइंड पावर सेट, फाइंड पावर सेट। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है किसी भी सेट के सभी सबसेट्स का एक सेट। ठीक है, अगर उस दिन आपको समझ नहीं आया था तो आज मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि पावर सेट क्या होता है। इट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स of a given set. Okay, power set क्या होता है, power set is a set of all the subsets of a given set। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इन फर्स्ट पार्ट इट इज गिवन a is equal to 0,5, a is equal to 0,5। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आप इसके सारे सबसेट्स लिखोगे। तो सबसेट्स क्या क्या हो जाएंगे, एक सबसेट होगा 5, एक और सबसेट होगा 5, एक और सबसेट होगा 0,5। ठीक है, और एक सेट होगा 0। ठीक है, तो इस 0,5 या सेट A के जो सबसेट्स होंगे वो होंगे 5 5 0,5 एंड 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसेट्स तो हमने बना लिए, लेकिन
उसका एक सेट ही क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। मतलब इन सभी सबसेट्स का एक सेट, और इन सभी सबसेट्स को अगर आपको सेट बनाना है तो इनको एक सेट के अंदर बंद कर देंगे। तो आंसर विल बी इट इज द पावर सेट ऑफ दिस सेट A दैट इज 0,5। ठीक है, तो आंसर विल बी 5, 0, 5 एंड 0,5 और इसको इनक्लोज कर दिया है एक सेट के अंदर। ओके, नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट द सेट इज गिवन 7,9। ये आप अपने आप से ट्राई करना, मैं पार्ट नंबर 3 बताता हूं आपको। ठीक है, इन पार्ट नंबर 3 इट इज गिवन c is equal to 2, 4 and 6। c is equal to 2, 4 and 6। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसके पावर सेट को बनाना है। ठीक है, यू हैव टू मेक अ पावर सेट या फाइंड द पावर सेट ऑफ दिस सेट C। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रिक्वायर्ड टू do the same, that means you have to write all the subsets of this set। तो first लिखेंगे subsets will be 5, then 2, then 4, then 6। ठीक है, then we'll be writing 2,4। ठीक है, then 2,6, then 4,6 and then 2,4,6। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इस सेट C के सबसेट्स हैं और इन्हीं सबसेट्स का एक सेट क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ दिस सेट विल बी दिस। पहले आप सबसेट्स लिखते हो, उसके बाद उन सभी सबसेट्स को एक सेट के अंदर इनक्लोज कर देते हो, एक सेट प्रिपेयर कर देते हो, वही सेट क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 फाइंडिंग द पावर सेट भी इजीली क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. Question number 11 it is saying let A is equal to 1 comma then set to find the power set of A। अब यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का सेट दिया है, A is equal to 1 then 2 और इसमें बोला जा रहा है find power set। It is saying find the power set। So फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इस सेट के सारे सबसेट्स बनाने होंगे। ठीक है, you have to create all the subsets of this set। ठीक है, वो क्या क्या होंगे, पहला तो हमेशा कौन सा होता है, 5। फर्स्ट सेट इज ऑलवेज 5। ठीक है, एंड देन second set will be 1। okay, and then third set will be, क्योंकि ये जो सबसेट है वो एक सेट की तरह पहले से ही प्रिपेयर्ड है, इसका मतलब एक सेट होगा 5, दूसरा होगा 1, तीसरा होगा सेट के अंदर ही 2 और तीसरा सबसेट, चौथा सबसेट जो होगा आपका वो पूरा यही सेट होगा, दैट मींस 1, ठीक है। उसके बाद अब आपको बोला गया कि पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है इन सभी सबसेट्स का एक सेट। ठीक है, इन सभी सबसेट्स का एक सेट ही क्या होता है, पावर सेट होता है। तो आप इसको एक सेट के अंदर इंक्लूड कर दोगे, सो इसी यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। चलो ओके, सो दिस विल बी द आंसर फॉर द पावर सेट ऑफ दिस सेट A। Now this is the last question, that is question number 12, है ना। This question was a little lengthy, that's why I written it earlier, पहले से लिख दिया मैंने। ठीक है, now let's understand this question first of all, then we'll be solving this question। It is saying let universal set is equal to x is such that x belongs to natural number and x is less than 50। ठीक है,
ये एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें बोल रहा है आपको कि x की जो वैल्यूज हैं वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रही हैं और कब तक की, जब तक की वैल्यू 50 से छोटी हो। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि इसके अंदर कौन सी वैल्यूज आएंगी, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर वैल्यूज आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 49 तक। क्यों? बिकॉज ये नेचुरल नंबर्स का सेट है और वो भी 50 से छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट है। एंड यू नो दैट नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और 50 से कम तक जाना मतलब 49 तक आपको जाना है। ठीक है, इन क्वेश्चन इट इज सेइंग कि आपको सेट ए फाइंड करना है, सेट बी फाइंड करना है और एक सेट सी फाइंड करना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस और दिए हैं उनका ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, तो सेट ए क्या होगा, लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ सेट ए। इट इज सेइंग ए इज इक्वल टू x is such that x square belongs to universal set। ठीक है, it is saying x is such that x square belongs to what, this universal set। इसका मतलब है कि इस यूनिवर्सल सेट में जो कि वो है उसमें से वो सभी स्क्वायर वैल्यूज लिखनी है जो उस सेट के अंदर आती है। ठीक है, तो पहली स्क्वायर वैल्यू जो सेट के अंदर है वो क्या है 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद जो दूसरी स्क्वायर वैल्यू आती है वो क्या है 2 का स्क्वायर मतलब 4। सिमिलरली नेक्स्ट जो उसके अंदर आएगी दैट विल बी 3 का स्क्वायर दैट इज 9। वही स्क्वायर लिखेंगे जो उस यूनिवर्सल सेट के अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, नेक्स्ट विल बी 16, उसके बाद 25, देन 36, देन 49। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5, 6 और 7 का स्क्वायर। जब हम लोग 8 का स्क्वायर करके यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे तो उसकी वैल्यू होती है 64 और वो 64 इस यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं है। इसका मतलब है कि यहीं तक ये सेट होगा। सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विल बी 1 4 9 16 25 36 एंड 49। ठीक है, नाउ मूविंग टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट बी क्या कह रहा है, सेट बी इज सेइंग x is such that x is equal to n square where n belongs to natural number। ठीक है, sorry this should be set b। why? क्योंकि हमें सेट बी के लिए n इक्वल टू n स्क्वायर करना था, मतलब कि स्क्वायर वैल्यूज को ढूंढना था। और सेट ए जो होगा, सेट ए विल बी कि वो वैल्यूज जिनके स्क्वायर इस सेट के अंदर हैं। तो कौन सी वैल्यूज के स्क्वायर इसके अंदर हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर है जो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर है। अब मैं बताता हूं आपको डिफरेंस क्या है, कैसे ए और बी सेट में डिफरेंस हम लोग करेंगे। ऐसे डिफरेंस करेंगे, ये जो जब हम लोग x की बात कर रहे होते हैं तो x की बात हम कर रहे होते हैं तो हम उन वैल्यूज को लेते हैं जिनकी डेफिनेशन में यूज है, मतलब जिनका स्क्वायर हमने किया है। ठीक है, और जब हम लोग n की बात करते हैं तब हम एक्चुअल वैल्यू को ले लेते हैं, मतलब स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को हम सेट के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी सेट A 1 2 3 4 5 6 and 7 and set B will be 1 4 9 16 25 36 and 49। ठीक है, now let's see set C। set C क्या होगा, set C is saying x is such that x is a factor of 36। इसका मतलब है कि वो सारे एलिमेंट्स हमको लेने हैं जो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं और वो 36 के फैक्टर भी होने चाहिए। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 36 के फैक्टर यहां कर लेते हैं। पहली बात तो 36 का फैक्टर क्या, 1 तो हमेशा ही होगा, 1 होगा तो यहाँ पे 36 ही रहेगा क्योंकि 1 हमेशा सबका फैक्टर होता है। नाउ फिर 36 का फैक्टर अगला क्या होगा, 2 होगा, जिससे 18 मिलेगा आपको। अब 2 दोबारा कर सकते हैं लेकिन हमको एक फैक्टर को एक बार ही लेना है, तो 18 के लिए काटने के लिए और कौन सी वैल्यू का यूज कर सकते हो, 3 का यूज कर सकते हो। तो 3 भी क्या हो जाएगा, 18 का एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली
मैं ऐसे नहीं बताता हूँ, उस तरीके बताता हूँ आपको, डिविजिबिलिटी रूल से, ठीक है। 36 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? 36 के फैक्टर हो सकते हैं, पहला तो 1 हो सकता है क्योंकि 36 1 से डिवाइड होता है। 2 भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि 36 2 से भी डिवाइड होता है। उसके बाद 3 भी हो सकता है क्योंकि 3 से भी 36 डिवाइड होता है, ठीक है। नाउ 4 भी हो सकता है, व्हाई? क्योंकि 36 4 से भी डिवाइड होता है। 5 नहीं हो सकता, व्हाई? क्योंकि 36 5 से डिवाइड नहीं होता है। फिर 6 भी हो सकता है, व्हाई? बिकॉज़ 6 भी 36 को डिवाइड कर देता है। नाउ 7 हो सकता है क्या? नहीं, 7 36 का फैक्टर नहीं है, व्हाई? बिकॉज़ 36 से को 7 डिवाइड नहीं कर सकता। 8 से भी डिवाइड नहीं होगा 36, तो 8 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। मूविंग फर्दर 9 होगा, हाँ 9 भी इसका फैक्टर है, क्यों? क्योंकि 36 को 9 भी डिवाइड कर देता है, ठीक है। नाउ 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा, व्हाई? क्योंकि 12 से 36 डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 13 नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, सीधे अब क्या होगा? 18 होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 6 9 12 और 18 ये सब क्या है? 36 के फैक्टर्स हैं। और दूसरी चीज, ये इस यूनिवर्सल सेट के अंदर भी हैं। इसका मतलब सेट C विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, ठीक है। तो हमें सेट B पता चल गया, सेट A पता चल गया और सेट C भी पता चल गया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज A is subset of B. A is subset of B. ठीक है, क्या A B का सबसेट है? नहीं, क्यों? A का सबसेट ऑफ B का मतलब होता है कि A के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए। 1 है, उस 4 है, 3 इसमें है नहीं है, इसका मतलब है कि A जो है वो B का सबसेट नहीं है, तो दिस विल बी फॉल्स। व्हाई? क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं है, therefore A is not the subset of B, इसलिए ये क्या होगा? फॉल्स होगा। Now moving to second, is A is equal to B? A is equal to B का मतलब होता है कि A में भी वही एलिमेंट हो और B में भी वही सारे एलिमेंट हो, वो भी क्या है? फॉल्स। तो A is equal to B, B क्या हो जाएगा आपका? This will be false as well, ठीक है। Now moving to third, it is saying, ये किसका सिंबल होता है? इट इज सेइंग चेक कि A इज इक्विवेलेंट टू B। इक्विवेलेंट कब होता है? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम हो। A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें B में 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब A and B are equivalent to each other, therefore this will be true. Now moving to further question, it is saying B is equivalent to C. B is equivalent to C. For that also you are required to check the cardinal numbers of B and C. In B there are total 7 elements. We should also check in C 1 2 3 4 5 6 7 and 8. That means these both sets are not equivalent to each other. So answer for this will be false. Next, last one is NA is less than NC. It is saying NA is less than NC. NA का मतलब cardinal number of A 1 2 3 4 5 6 and 7. Cardinal number of C 1 2 3 4 5 6 7 and 8. तो true है, NA is less than NC. Why? This is 7 and this is 8. So this will also be true. ठीक है? So I hope you have understood this question number 12 of this exercise 5B. Now let's move further to some various things which will be helping you to understand and solve exercise 5C. Exercise 5C. Before doing the questions, I just want you to understand what are the various kind of sets which are required to understand in order to solve the questions of this exercise 5C. ठीक है? First one is union of sets. First one is union
ऑफ सेट्स। ठीक है, व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट्स ये हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ओके, सपोज एक सेट दिया आपको 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एक और सेट दिया B विच इज 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, देन आपको बोला गया कि यू हैव टू फाइंड A यूनियन B। ठीक है, दिस इज सिंबल ऑफ यूनियन, यू हैव टू फाइंड A यूनियन B। तो A यूनियन B निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि आपको A के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। तो A के सारे एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, उसके बाद B के भी सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं, बस वो एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं जो A में पहले से ही आ चुके हैं। तो 4 और 5 A में पहले से ही आ चुका है, इसलिए 4 और 5 को दोबारा नहीं लिखेंगे, बाकी बचे एलिमेंट्स को लिख देंगे with 6 7 and 8। so this will be A union B। तो हम बोल सकते हैं the union of two sets A and B denoted by A union B is the set of all those elements each one of which is either in A or in B। इसका मतलब है A यूनियन B एक ऐसा सेट है जिसमें वो एलिमेंट्स हैं जो या तो A में हो और या तो B में हो, है ना। A और B दोनों के एलिमेंट्स यूनियन के अंदर आते हैं। द थिंग इज आपको जो याद रखना है कि जो A में पहले आ चुके हैं वो B में दोबारा आप काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, सो आई होप आप A यूनियन B बिल्कुल समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे A इंटरसेक्शन B। यूनियन का उल्टा इज इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यूनियन में क्या किया हमने, यही एग्जांपल लेके सॉल्व किया, तो ये यूनियन आया। A सेट और B सेट को लेकर के हम इंटरसेक्शन को सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्शन मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन इन बोथ set A and set B। That means you have to look for those elements which are coming both in A and B। So they are 4 and 5, 4 and 5. Therefore A intersection B will be equal to 4, 5। ठीक है, so this is A intersection B and this was A union B। ठीक है, now moving to disjoint sets। Next is disjoint sets। What are disjoint sets? Disjoint sets वो sets होते हैं जिनमें आपस में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। A and B sets are said to be disjoint if they do not have any element in common। ठीक है, तो आप लिखोगे set A and set B are said to be disjoint when they do not have any element in common। सेट A और सेट B को तभी डिसजॉइंट बोलते हैं जब दोनों सेट्स के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक सेट A जिसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3। ठीक है, दूसरा सेट लिया मैंने B is equal to 4 5 एंड 6। यू कैन क्लियरली सी कि A और B कैसे हैं, डिसजॉइंट हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि जो A इंटरसेक्शन है B दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। व्हाई? A इंटरसेक्शन B क्या होता है, दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स और दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि A इंटरसेक्शन B की वैल्यू जो है वो 5 के इक्वल है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स।
they will be very much useful for you in order to solve the questions of exercise 5C. Okay. Now next is difference of sets. Difference of sets. As the name signifies, difference of sets, that means you have to just difference, subtract करना होगा दोनों सेट्स को. कैसे करेंगे? सपोज हमने एक एलिमेंट, एक सेट लिया A जिसमें हमने एलिमेंट्स डाले 7, 9, 15, 12 and 18. ठीक है, we have taken a set A is equal to 7, 9, 15, 12 and 18. ठीक है. Now एक हमने सेट लिया B is equal to 9, 12, 21, 35 and 91. ठीक है. Now आपसे बोला गया you have to find the difference of sets. Difference का मतलब होता है subtraction. तो हमको फाइंड करना है A minus B. A minus B कैसे करोगे? एलिमेंट्स जो A में हैं और जो B में है दोनों का डिफरेंस. डिफरेंस का मतलब A में एलिमेंट है 7, 9, 15, 12 और 18 और B में एलिमेंट्स है 9, 12, 21, 35 और 91. इसका मतलब है A से B वो एलिमेंट्स ले लेगा जो B में भी ऑलरेडी है. तो 7 इसमें है नहीं है तो 7 बच जाएगा, मतलब डिलीट नहीं हुआ. 9 इसमें है और इसमें भी है, हमें करना है A minus B. इसका मतलब है कि B इस वाले का 9 ले लेगा तो 9 यहाँ से खत्म हो जाएगा. ठीक है. फिर 12 भी है इसके पास तो 12 भी खत्म हो जाएगा, 15 बचेगा. नाउ 18 इसके पास है, इसके पास नहीं है तो 18 भी बचा रह जाएगा. ठीक है. तो फिर से बताता हूं, डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता है अगर हम A माइनस B कर रहे हैं, A से B में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो एलिमेंट्स A के जो B में हैं वो डिलीट हो जाएंगे, बाकी बचे एलिमेंट्स बचे रह जाएंगे A के. ठीक है. अगर हम यहाँ पे करते B माइनस A, क्या करते B माइनस A, इसका मतलब अब B के सारे एलिमेंट्स बचे रह जाएंगे वो जो A में नहीं है. तो 9 B का खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके पास भी 9 है. 12 भी खत्म हो जाएगा क्योंकि A के पास भी 12 है. बच जाएगा 21, 35 और 91. तो आंसर विल बी 21, 35 एंड 91. ठीक है. सो आई थिंक विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं. एक और हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैंने एक दिया सेट A is equal to 1, 2 and 3. ठीक है. उसके बाद हमने B लिया 1. ठीक है. और हमको निकालना है A माइनस B. तो A माइनस B का आंसर कितना हो जाएगा 2, 3. बट B माइनस A का जो आंसर होगा वो 5 होगा. वाई क्योंकि A में सिर्फ एक ही एलिमेंट था 1 और 1 जब हट गया जो A ने ले लिया कि A के पास भी 1 था तो B के पास अब कुछ नहीं बचा और क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 5 बचा. ठीक है. So I hope you have got the concept of this difference of sets. ठीक है. Now let's move to complement of sets. Complement of sets क्या होता है? Complement of sets. I am reading this from the book. It is saying let there be a universal set and A is the subset of universal set. Then complement of A denoted by A dash is the set of all those elements of universal set which are not in A. ठीक है. समझेंगे with the help of example.
एक यूनिवर्सल सेट हमने लिया, ठीक है, दिस वाज यूनिवर्सल सेट, और इसमें एलिमेंट्स हैं 2 9 27 35 97 एंड 29, ठीक है। आपने एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 9 27 35 97 और 29, और ये एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट इसलिए बोलते हैं क्यों, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे जो बाकी किसी भी एलिमेंट सेट के अंदर भी होने चाहिए, या उसका कुछ पार्ट हो या पूरा का पूरा वही हो, ठीक है। हमने एक सेट लिया A, और ये सेट आपको ऐसा लेना है कि ये सेट A जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि A में ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो A है वो इसका सबसेट ना हो, मतलब कि इसके ही एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, या तो पूरे हों या तो कुछ हों, ठीक है। सपोज मैंने लिया A इज इक्वल टू 27 35 एंड 97, ठीक है। तो यू कैन क्लियरली सी A जो है इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। क्यों? क्योंकि इसमें वही एलिमेंट्स हैं जो इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है। सो अगर हमें निकालना हो कॉम्प्लीमेंट किसका, इस सेट A का, if we have to require to find the complement of this set A, तो कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करने के लिए A के ऊपर ऐसे डैश लगाते हैं, और उसका आंसर कैसे निकलता है, इन एलिमेंट्स को हटा करके जो भी एलिमेंट्स बचे यूनिवर्सल सेट में वही A कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। दे विल बी 2, 9, 29, ठीक है। तो आप बोल सकते हो फ्रॉम हियर कि A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस set A. You can say A complement is equal to universal set minus A, ठीक है। Now let's move further, which is the last concept of this exercise and the chapter as well, which is called distributive laws for union and intersection. Distributive laws of union and intersection, ठीक है। We have to find the distributive laws of union and intersection, ठीक है। फर्स्ट लॉ इज, अगर मैंने लिखा A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। मैंने क्या किया, तीन सेट हैं A, B और C, और मैंने लिखा A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आंसर विल बी A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। आंसर विल बी A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इसको किससे रिलेट कर सकते हो आप, जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ते थे, मल्टीप्लिकेशन। सपोज यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन होता और यहाँ प्लस का साइन होता, तो क्या हो जाता था, A इंटू बी प्लस A इंटू सी। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ठीक है। सो दिस विल बी द रिजल्ट। सेकंड, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दिया जाए, A इंटरसेक्शन कर दिया जाए, इसको यूनियन कर दिया जाए, B यूनियन C, सो distributive law will say it will give you A intersection B then union A intersection C, ठीक है। मतलब कि जो यहाँ पे सिंबल आता है वही दोनों के साथ जाकर के बीच में यूनियन कर देता है, यहाँ पे जो यहाँ पे यूनियन आया है वो दोनों के साथ यूनियन करके बीच में इंटरसेक्शन कर देता है, ठीक है। These are two rules which are called the distributive laws of unions and intersections, ठीक है। Now one more important thing is left, which is called De Morgan's law, which is called De Morgan's law. De Morgan's law. De Morgan's law क्या होता है, सपोज आपको बोला दिया गया A यूनियन B और इसका होल कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया। क्या दिया गया, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आंसर होता है, ये कॉम्प्लीमेंट दोनों में लग जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन चेंज जाएगा
इंटरसेक्शन में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे लिखा होता ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, सो आंसर क्या हो जाता, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। So this is what you are required to keep in your mind when we will be solving the questions of the exercise 5C, ठीक है। So I want you to start exercise 5C and we will be discussing the questions of this exercise in our next class. Thank you.